हेलो एवरीवन वेलकम टू वॉइस ऑफ सो डेली करंट अफेयर इंडियन एक्सप्रेस रो आज मैं डिस्कस करिबा दैट इज द व्हाट संडे वाला जो अछि 21st ऑफ अप्रैल रो डिस्कस करिबा एंड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल्स आज मध्ये इंपोर्टेंट आर्टिकल्स अछि तो आज यूजुअल जहाँ मु डेली डिस्कशन करूची तमन के सहित जदि तुम डेली शॉर्ट नोट्स बनै देबो देन इजी हे जबो कि वर्ष सारा रो गोटे शॉर्ट नोट्स हमर पाखे रहि जबो एंड दैट वुड बी आम कहवा कि हाँ एट द एंड ऑफ द डे तुमको जो कंपाइलेशन रो जरूरत हुए तो से कंपाइलेशन रो जरूरत हबो नहीं ना the mercury which is 45 degree in both and Baripada that means obviously this would be the part of Odisha geography and also the general awareness ke they might ask you a questions ke why this part the western part of Odisha always this is not the fast season or this is not the fast summer season where the mercury the breaches 45 degree in both in Baripada. Other cities like the twin city like the Bhubaneswar, Cuttack, they are also 40 degree and today also the 40-degree temperature is remaining. So obviously that this kind of condition like the summers would be very harsh as the El Nino effect was there. So dry season was there, lack of rainfall was there, deficient rainfall. So that is why so we are going to experience the harsh summers year after the year. Then they might you ask you why this particular happenings to the western Odisha, because western Odisha is having the dry condition, plain areas. Those are the plain areas like the both is a plain area, Bargad plain area, Baripada, like plateaus. So that region will experience what humidity and that is the high temperature. Okay, so moves on to the editorial part. I would not go to the छोट छोट जो पार्ट अच्छे मुझे ताको भी नहीं direct we will comes to the what that is the editorial part को हमें आसीबा so that we will have a perspectives can editorial part रो कौन था perspective था बाकी देखो मसला वाला टॉपिक्स को हमर जीवर कौन भी नहीं now you will comes to the this part so this is very important articles लिखाई छी now Monday we will celebrate that is the earth day see now this article is written by Shankar Iyer one of the matlab my favorite like what Prabhu Chawla and Shankar Iyer these two guys they really write pretty good articles बहुत बढ़िया articles लिखन थे and their vocab level also pretty good high levels of vocabs ताद्वारा कौन हम ना आमको जितने में पैसेज पढ़ुचे यूपीएससी रे जितने में बा ओपीएससी रे जो पैसेज आम करूचे सी सैट रो जो आम कहूचे कम्प्रिहेंसिव तो ताद्वारा तुम इम्प्रूव हम बहुत सारा तुम इजिली कर now earth day or Monday रे मतलब this Monday the world is going to observe the earth day but what we will observe war because the world is passing through the number of wars plastics there is everywhere plastics and the thoughts and the notions non sequitur that means does not have any solution so ये सबुर किसी solution ये सबुर किसी end नहीं now the earth is passing through this earth is passing through the plastic pollution earth is facing severe heat let's see now on this certain day जदि हमें देखिबा तो like the 1971 रे कोन हेतला so that time the then what UN Secretary of General Yu Thang unveiled the idea of observing the earth day and earth day so प्रत्येक वर्ष हमें कौन को earth day celebrate करी थो okay now suddenly जदि हम देखो become necessary to remind us that our small planet is perishable ये धीरे धीरे कोठी ना कोठी हम देखिबा in the 5 decades since the number of calendar events हमको देखिया मन the prex that is our spectrum of concern आज को 50 वर्ष हो गेला हम देखिबा 1971 रू that is what earth day for the what 55th time that means this would be the 55तम अर्थ डे आम सेलिब्रेट करवा which was started in 1971 तो 1971 रे अर्थ डे सेलिब्रेशन स्टार्ट होता and this Monday would be the 55th celebration किंतु ये 50-55 वर्ष रे हमें अचीव कौन करूचे तो ये जो हम स्पेक्ट्रम ऑफ कंसर्न अर्थ पाखरे बहुत सारा कंसर्न रही जमी प्लास्टिक पोल्यूशन कथा नहीं जाओ नॉइज पोल्यूशन कथा नहीं जाओ वाटर पोल्यूशन कथा नहीं जाओ ये सारा जो इश्यूज रही यार सॉल्यूशन कौन at least count at last count there are 20
लिस्टेड एनवायरमेंटल डेज ऑलमोस्ट जदि आम देखा एमती बहुत सारा वेटलैंड डे अच्छी कौटी तुम एमती बहुत सारा डे अच्छे कि नहीं एमती देख अर्थ डे सीना गोटे बट एट लास्ट काउंट जदि आम देखा 20 लिस्ट आमर अच्छी कौटी अच्छी वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कौटी अच्छी वर्ल्ड अर्थ डे कौटी अच्छी वर्ल्ड टाइगर डे एमती बहुत सारा डे अच्छी किंतु एते सबू कला परे भी कोठी ना कोठी जो प्रिजर्व प्लानेट को प्रिजर्व करी हो नहीं इक्विलिब्रियम ऑफ द प्लानेट एस्टाब्लिश हो पारू नहीं मतलब एते सबू आमे कहबा ये जो 55th आमे कहबा जोटा कि इयर्स ऑफ ह्यूमन जो अर्थ डे फिर भी अर्थ रो सिचुएशन प्रिकारियस बट दैट इज द प्रिकारियस कंडीशन ऑफ द अर्थ तो जदि आमे देखबा जेमति आमे 55 अर्थ डे और द कॉफ 28 कॉन्फ्रेंस जोटा पेरिस रे that means what meetings on the climate change have engineered or even influenced the human behavior क्या आम देखा आम चाहूचे समस्ते क्लाइमेट चेंज को केमती रोकवा द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउसेस गैसेस आम देखा बहुत बढ़ी बढ़ी चलती आईपीसीसी रिपोर्ट तुम देख है ना वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया चाइना एंड यूएसए तो धीरे धीरे सिंस 1850 रू आम देखा लास्ट ईयर वाज द हॉटेस्ट सिंस द आम कहवा 1850 पर in the last 100 years देखा now the new height of the आम कहवा geographics and February esteems warmest तो केबे देखियो क्लाइमेट चेंज दैट मीन्स से कहउछन्ती क्लाइमेट ऑथर कहउछि क्लाइमेट चेंज कि आमे तो कॉप 18 सेलिब्रेट कर देलु कॉप 18 कथा नहीं जो 17 कथा एते सब कॉप करूछि एनडीसी करूछि जहां भी करो फिर भी हमको देखबा टेम्परेचर कोठी ना कोठी बढ़ी बढ़ी जाउछि लास्ट 100 इयर्स रे टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी सब हाईएस्ट पहुंची हिस्ट्री रो Some India is facing the worst heat waves. Obviously, India heat waves, water scarcity face करछथि that is but thrustings for the water, groundwater level worry होला India रे. Politicians and economists मानकर किछि they are worrying of the politician the what situation को नहीं. Glaciers माने खत्म ही जाउछि that means हमें कहबा the glaciers are but melting away. Million square kilometer retreat of the level of the Arctic ice and the Antarctica. तो कोट ना कोठी हमें अर्थ डे तो सेलिब्रेट करूचे बट अर्थ इज नॉट इम्प्रूविंग बट द एसेंस जो थी पई हमें अर्थ डे सेलिब्रेट करिया कथा बट सेटा कोट ना कोठी होनी अर्थ इज मूविंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन तो सेमती हमें प्लास्टिक कथा जेतलो डिस्कस करवा सेमती जदि हमें प्लास्टिक पेरिस क्लाइमेट चेंज कथा डिस्कस करा इंडीड हमें देखिबा इन द दैट लास्ट ग्लोबल स्टॉकिंग रिवील्ड दैट द वर्ल्ड इज स्कार्सली due to what that is close to achieving the goals of the मतलब जदि हमें जो पेरिस क्लाइमेट चेंज कथा नहीं जो जेतरो कॉप 21 हेइथिला सेथरे भी हमें कोन अचीव करजे किछि अचीव करने जो गोल सब रहिछि पेरिस क्लाइमेट चेंज किछि तो अचीव करने सेथ में इति लिखा है द वर्ल्ड इज scarcely close to achieve the goals of the Paris okay for 3 decades ahead of the nations have debated the balance between the what fueling growth and trimming the emission ना एबी डिबेट आसुछि कोन ग्रोथ एंड एमिशन रे डिबेट कि एमिशन को केमते कट करबा किंतु एमिशन को कट केले ग्रोथ कमिबो तो ये जो डिबेट एबे धीरे धीरे कोन हैला समते केन्स कथा तुम जानछो केन्स कोन कहतले केन्स कहतले इकोनॉमी को बूस्ट करिया पे हेले कोन दरकार दैट इज द हाउ टू पुश द इकोनॉमी ओके जेमते हमें कोविड टाइम रे कहले तो ऑब्वियसली केन्स तब जानछे तुम यूके रो इकोनॉमिस्ट तो जदि हमें देखा जदि हमें ट्रिमिंग करूचे एमिशन को ट्रिमिंग करे विथ अ लिटिल प्रोग्रेस चैलेंज एंड नॉजिंग द नेशंस अवे फ्रॉम द प्रॉब्लमैटिक टू प्रिफर्स द पैराडाइम्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जदि हमें एमिशन को कट करूचे ताले हमर ओवरऑल ग्रोथ कमी जिवो काना एटा जॉन मेनार्ड केन्स कहिथिले वंस ऑब्जर्व इट इज डिफिकल्ट टू लाइज नॉट इन व्हाट डेवलपिंग न्यू वेज बट टू एस्केपिंग ओल्ड वंस ओके तेणु करिके हमको जदि देखिबा कि एमिशन कट भी हेले हमको देखिबा ता मतलब ग्रोथ कम जो तो बेटर वी हैव टू अडॉप्ट एनी अदर वेज तो सेथि पई हमको बाकी वेज देखिया पड़िबो वंस ऑब्जर्व दैट डिफिकल्टीज लाइज इन व्हाट डेवलपिंग न्यू वेज बट इन एस्केपिंग द ओल्ड वन तो ओल्ड को केमती छाड़िबा सेटा होची डिफिकल्टीज रादर देन द व्हाट न्यू वन को अडॉप्ट करिबा तेणु ओल्ड टा जो सिस्टम अच्छी एमिशन जोटा कंटिन्यूअसली चली छाड़ा डिफिकल्ट न्यू वन को अडॉप्ट करवा जब इवीज वगैरह ये सब तेणु जदि हम कह 55th वर्ल्ड डे रे जदि मतलब प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक जदि हम कहबा
जहाँ से कहते प्लानेट वर्सेस प्लास्टिक एथरे से कहते यूएनईपी गोटे डेटा देइछन्ती जोथरे कि कह जे एवरी मिनिट्स रे इन एवरी मिनिट्स ए मिलियंस ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स आर व्हाट बॉट किना जाउछि एंड 5 ट्रिलियन प्लास्टिक्स बैग्स आर यूज्ड एवरी ईयर तो डेटा कहूँ कि 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स ये जो पॉलीथिन्स वगैरह एंड 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल्स को किना होछि प्रत्येक मिनिट्स रे दिस ईयर द प्लास्टिक्स आर नाउ विजिबल मार्केट इन anthropogenic scene तो दैट इज दिस ईयर आम कहबा द प्लास्टिक आर नाउ विजिबल मार्केट्स इन व्हाट इन द anthropogenic अर्थात कोन द एरा ऑफ प्लास्टिक्स द एरा ऑफ ह्यूमन बीइंग ओके नाउ द अर्थ इज डोमिनेटेड बाय व्हाट anthropogene अर्थात द एरा ऑफ what that is anthropogenic activities the current geological era ताले current geological era को हमें कौन कहूचे anthropogene that means the human dominated earth the havoc आदर कौन हबो ना havoc create होची प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक जदि तमे देखिबो नेचुरल हैबिटेट रे बहुत सारा व्यापी गलानी इवन तो जमती गोटे स्टडी देछि ओशन ऑफ कंजर्वेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कहबा कथा माइक्रोप्लास्टिक्स in 88% of the proteins in animal source and the plant based alternative and that is highly processed product as well तो सबु थिरे हमको प्लास्टिक्स देखा जाउछ चाहे से प्रोसेस्ड कथा ले जो अनप्रोसेस्ड कथा नहीं जो सो रिसर्च टीम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको को है कथा कि हेल्थ साइंस एंड द रिपोर्ट फाइंडिंग माइक्रोप्लास्टिक्स in all 62 of the what placenta samples tested तो ऑलमोस्ट ऑल जिनस जहाँ मार्केट आसूची कोठी ना कोठी हमको माइक्रोप्लास्टिक मिलूची माइक्रोप्लास्टिक बाजा को माइक्रोबिट्स भी तमे को आजे तेणु जदि आम देखा तो कोठी ना कोठी एबे एंड ऑल्सो देयर इज ऑल्सो स्पेक्ट्रम्स ऑफ डिबेटेबल इश्यू ऑफ द ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द बट पीस देयर इज ऑल्सो द वट लेथाल कॉस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट भी चलची ना 1971 रे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली that means American secretary जो assembly secretary general Thant hoped humanity would be united united कहीं तो वार पर वार चलची बैटल पर बैटल चली तो देयर इज मिडिल ईस्ट कथा नहीं जो रशिया कथा नहीं जो इजराइल कथा नहीं जो हामास कथा नहीं जो ईरान कथा ये तो हमें देखीचे गाजा कथा नहीं जो रशिया ये तो हमें देखीचे सो वर्ल्ड पीपल्स एंड द प्लैनेट्स आर प्लेइंग द प्राइस ऑफ व्हाट दैट इज इनहैबिटेशन there is the tactics of loss of that means what tragic loss of lives होची estimators मतलब millions of people are हना लोक माने weapon पछरे भागुचंती एपटे कोठी रॉकेट कोठी ड्रोन कोठी मिसाइल ताको फायर करचंती thousands जमते 8000 missiles 4600 drones use करा जाय गाजा और इन द गाजा and Israel is estimated to have used over 25000 tons of explosive okay done सो दैट मीन्स आम कहबा कि अर्थ जेते वार हबो ना अर्थ सेते आउरी अनसस्टेनेबल हबो अर्थ कोन हबो अनसस्टेनेबल हे ही जीवो सो बोथ प्लैनेट्स एंड द पीपल्स द प्लैनेट सफर्स बोथ दैट इज द प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ वेपन एज वेल बोथ हम देखबा टेक द मिसाइल्स तो से कुछ मिसाइल्स कथा नहीं जो जार प्रोडक्शन यूज द व्हाट आम कहबा प्रोजेक्टाइल कॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इंक्लूडिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन as well the recent study says the total military carbon footprint is approximately 5.5% of the global emission this is very important data कि ग्लोबल टोटल एमिशन रो 5.5% खाली मिसाइल रु आसुची प्रोडक्शन मिसाइल एमती वर्ल्ड मिलिटरी वेयर्स बट ये दैट मीन्स आम जी डिस्कस करवा एक मिनट हाँ तो एथरे से कहूँ ताले कन्फ्लिक्ट एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेटिव तो स्टडी कहूँ कि कन्फ्लिक्ट दैट मीन्स एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेटिव कहूँ कि टोटल जो कार्बन फुटप्रिंट्स होती मिसाइल्स मन करबा मिलिटरी कार्बन फुटप्रिंट्स 5.5 वर्ल्ड रो दैट मीन्स बहुत बड़ परसेंट गोटे कहबा एंड if the world military were a country जदि military गोटे country होइथले in a figure that would have the fourth largest nation of the carbon footprint ताले भाबो the first carbon footprints जदि हम कहबा that is the COP meet in the Berlin COP first Berlin जोटा हितला and the COP 28 in Dubai military expenditure crosses करूची केते of the world that is हम कहबा 1.2 trillion over the 2.2 that means धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउची तो धीरे धीरे खर्च बढ़ी बढ़ी जाउची
and revenue of the top 100 companies in this arm industry is total 597 billions. तो आधर इनकम भी लोक करुँच आधर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन बहुत हो तो कोठी ना कोठी जदि वर्ल्ड रे आम पीस आनिबा ताले ये सब प्रॉब्लम कार्बन डाइऑक्साइड पाई सब लॉस होची ना इकोनॉमी लॉस कमी जिवो. So the cause of climate change demand the nation to come together. समस्ते एकाठी आसंतु and गोटे rule based world order extend हवा दरकार and conflicts beyond the theaters of war तो ताकू सब खत्म करिया दरकार so that हमें गोटे पीसफुली अर्थ रही परिबा. तो ये एसेंस नाउ बाकी ये जो देखिबा में जो चावला लिखिचंती प्रभु चावला ये आर्टिकल्स पॉलिटिकल मोटिवेटेड ताको हमें डिस्कस करिबा नहीं तो पॉलिटिक्स बाय इलेक्शन को नहीं की बट दिस वन इज हैविंग गुड वन. तो ये कहते दैट मीन्स आम देखा दैट इज गीता रविचंद्रन ये तांकर ऑथर जे लिखी कौन ना आमर जो अच्छी डिस्क्रिमिनेशन राशियल डिस्क्रिमिनेशन ऊपर लिखी तांको कहया कथा आजिकल देखो बहुत सारा फेयर जमी आसला ना फेयर एंड लवली तो ताकू कौन है कंप्लेन है कौन कहला फेयर एंड ग्लो कहला ये जो कंपनीज मैंने अच्छा जो मैंने रिसेंट एठी लिखा है देखो द डीप रूटेड प्रिजुडाइस इन आवर कंट्री अगेंस्ट द डार्क स्किन सस्टेन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री. The cosmetic industry they are exploiting this what I would say the prejudice in the society के dark skin एमन को पसंद करिबानी जो माने कर माने हम के बा ग्रे हेयर्स और लेट्स से द व्हाइट हेयर ताकू लोग पसंद करिबेनी तो सेथि पई हम के बा किए को जे हां चुटी की कला करिया पे एटा करो सब माने गोरा देखा जबो व्हाइट टोन यूज करो तो सो दैट कौन होची ना ये दीज कंपनीज आर गेटिंग प्रॉफिट डे आफ्टर डे ये माने प्रॉफिट पाउचंती बिकॉज आम सोसाइटी रे ये जो हेटेड डिबेट रही और ये जो राशियलिज्म रही एथि ओके तेणु करके हमको से कहते कि से कहा कथा से गोटे इवेंट को लेकिन कहते कि देयर वाज ए रिसेंट रिपोर्ट फ्रॉम द प्रोमिनेंट क्लासिकल डांसर declaring that a male colleague should not be dancing as he was black as a crow. तेणु गोटे इवेंट आसी कि जो बिजावाड़ा रे कि से तांको अलाउ करने क्लासिकल डांस के जेहेतु से कला थिले तले भाबो कोन कला लोक बोली डांस करि परिबो नाही तो दैट इज द तेणु करके ताको बेनिफिट उठाउछि कि एदमती लाइट स्किन कर दबो ब्यूटी वाला बहुत आजकल ब्यूटी पार्लर बहुत आसी गेलानी आजिकल ब्यूटी अपीयरेंस पे केते स्किन केयर आसिकलानी एमने बेनिफिट्स नौचंती. ऑथर कहया कथा गीता रविचंद्रन के जो देश रे एठी भगवान होची डार्क कलर श्रीकृष्ण सेठी कला गोरा ये भेदभाव कौन पे ये भेदभाव तो रहा कथा नुह इन द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म जदि आम देखा हाँ ठीक अच्छे जो कॉलोनी थिलु आम व्हेन वी वर यूज्ड टू द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश दैट टाइम्स दे यूज्ड टू हैव द डोमिनेंस के द व्हाइट पीपल्स आर द मोर brilliant they are here descends to rule the black people so that kind of there was there the dark skins peoples indigenous peoples and the introduction of varna system that system was there the caste is a weapon was there the socio-economic groups that was a weapons there the global prevalence of the colorism so there is a colorism of non-white race and the white race. The British boasted that once the racial superiority that the whites are born to rule the blacks like this kind of thoughts they were having but we don't have that one. So like a WHO study says the global skin's whitening industry the value is what 31.2 billion in 2024 and it comprises the skin lightening products. So that means this kind of social division this kind of I would say what colorization or colorism is helping the multinational companies to gain the benefits. We are doing discrimination, they are getting benefits. So, but sometimes these products are having mercury, which is also what that will damage your kidney and that is the what hydroquinone. Okay, ये carcinogen मतलब कैंसर भी कर सकता है. So these are also there so they are not also what safe product even मतलब ये आपको भी पता होगा कि the है ना आपण माने भी जानछन कि जेतले थिला कि फेयर एंड लवली तापर जेतले केस हला ना चेंज कले तो ये गोटे कंपनसेट ऐसे इनडायरेक्टली कहउछंती कि गोटे ब्रांड थिला जाको प्रोटेस्ट होबा बधरे से तारो ना चेंज कला कंपोजिशन चेंज हेनी किंतु एबी भी से प्रॉफिट उठाउची तांको कहा था तो देखा एठी लिखेची
कि द रिब्रांडिंग ऑफ फेस क्रीम जमती मु कहली रिब्रांडिंग ऑफ फेस क्रीम कहली कौन जोटा फेयर एंड ग्लो हो गला गोटे रिब्रांडिंग हो गला किंतु तार कंपोजिशन तो सेम अच्छी सेही तो सेया करूची ना कहा पई करूची के मतलब फेयर एंड ग्लो अर्थात कौन ताले जो माने ब्लैक से माने ग्लो करंतिनी बुझिपाରୁଛନ୍ତି तो यही भलिया जिते मतलब प्रडक्ट सब धरिकी आसूची से बेनिफिट लौच लोक खाली कहते हाँ यहाँ देखिए तुम भल देखा ये कि कौन लोक जब गोरा ताकू लगुच जमी मुझ पासपोर्ट पाईगली तो सही कथा से कहते कि जो मैंने टी गोरा से भावुं सोसाइटी आम पाखे कौन अच्छी आम पाखे वी आर हाविंग पासपोर्ट वी आर हाविंग प्रिविलेजेस भाई एमती किसी न थाए टैलेंट हूँ सबकि तो से कहा कथा जमी थे से कह ऋषि दैट इज बट अस्त भाक्रा तो ये तांकर बहुत सारा बॉडी रे डिफॉर्मिटीज थिले से जेतेबेले दैट इज जनक किंग कोर्ट रे जाइकी पहुंचले समस्ते हसिले ये भी बहुत जोरे हसिले लोक मैंने ये हसवा देखी से मैंने कोर्ट लोक मैंने कहले अरे आमे तो आकु देखी हसिलु एथि ये डिफॉर्मिटीज ता बॉडी रे एटा कंपा कोना सेथि पई हसिलु ये कहले मु हसुची एथि पई कि आजिकली लोक ये कलर को देखिकी भलिया बा कहार चेहरा को देखिकी हसुचंती तो मु तो भाबुतली माने बहुत एजुकेटेड किंतु एते एजुकेटेड नुआ ताहले जनकर जो पैलेस रे जो लोक माने एजुकेटेड मतलब एटले के स्टंट जनक asked him why that is what Astabakra replied that he came expecting to meet a learned man. He realized that but realized that he was in the midst of those who could not see beyond the skin से कहा कथा रे एमान तो स्किन रो बाहर को किछि देखा जायनी माने कोन एजुकेटेड तेणु करी कि appearance does not matter is the attitude matter is the knowledge matter is the skill matter is the human values so that is the need that is the cooperation acceptance that must be there in the society so that is the essence from this okay now we will come to the last one मैं last को आसी पाइबे बहुत बड़े आर्टिकल्स मतलब लास्ट गोटे रही ना हियर इज द लास्ट वन सियाचिन ग्लेशियर ऊपर देछि ये देखो तुम्हें काराकोरम दिस इज द काराकोरम रेंज आगे मुझे मैपिंग टा करै दिए मैपिंग ऊपर सबले क्वेश्चन आसुची ना फास्ट कथा देखो सियाचिन ग्लेशियर इन 1984 इट वाज 1984 we captured this Siachen glacier the triangle shaped Siachen glacier ऑपरेशन मेघदूत कौन था ऑपरेशन मेघदूत थ्रू द ऑपरेशन मेघदूत द्वारा को हमें कैप्चर करते ना दिस सियाचिन ग्लेशियर हियर इज द पॉइंट इंदिरा कोल द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया एंड दिस पर्टिकुलर रीजन इज द सक्सम वैली आपको कौन कह जाए सक्सम वैली जोटा कि ये जो सक्सम वैली ये एरियाटा हूँ सक्सम वैली आपको पाकिस्तान कौन कर चाइना को बिकी देछि सो गोटे साइड चाइना गोटे साइड पाकिस्तान गोटे साइड इंडिया सो दिस इज द ओनली ट्रायंगल इन द वर्ल्ड called as the nuclear triangle of the world. This is the nuclear triangle of the world where three countries meets with nuclear weapons. Everybody is having nuclear weapon. This is the nuclear triangle. Okay, so ये important part. Now comes to the important part. So it was 1972-73 रे जो सिमला एग्रीमेंट हेतला जेतरो बांग्लादेश लिबरेट हैला बुझ बचनी से समय हमरे सीज फायर करथिले से सीज फायर अनुसार हमरे एलओसी हेची जो एलओसी आज तुम देखु एटा कोन एलओसी तले एलओसी आसी के एठी एंड होची ए जगार ना कोन एनजे 9842 दिस इज वेरी इंपोर्टेंट तले हमरे लास्ट बॉर्डर जदि हम देखबा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ बॉर्डर सियाचन ग्लेशियर रो सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको कौन कह एनजे 9842 ताले एठू स्टार्ट होची हमर इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी एंड 1972-73 रे सिमला रही थिला सो दैट इज द व्हाट ये हमको ए जगह हमर एलओसी खत्म होची एलओसी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर ओके तो ये एलओसी रहला तापर सियाचन ग्लेशियर आसीबो जोटा कि हाईएस्ट बैटल फ्लीट 6 ରୁ 8 कोटी टका प्रत्येक दिन खर्च हुए टू मेंटेन द सियाचन ग्लेशियर जाको मध्य कह जाय द थर्ड पोल ऑफ द अर्थ एंड द लार्जेस्ट ग्लेशियर apart from the two pole data pole is the largest glacier this whole region is the glacial region हमें देखि परिबा one of the largest glacial region of 70 kilometer long glacial region तो एठी तुमको देखा जो 60 almost 70 something हबो बा ये पूरा region one of the largest glacier in the world ये पूराटा काराकोरम range and this is the Gilgit Baltistan जाको हमें कहूचे पॉक region occupied by Pakistan
Here is the oxides in China control. This is Pakistan control. This is India control. So 3 players are there. Okay. तेणु करके जदि आम देखा पर्टिकुलर जगार तो इंडिया पाकिस्तान जदि आम देखा 1949 ओबियसली आम जानी कि अलग है तो मु बाकी मु देख पूरा आर्टिकल्स को डेप्थ को जाऊनी सिंपल मु कभी सियाचिन ग्लेशियर अच्छी एंड थ्रू दिस रीजन योर पॉक इज पासिंग दैट इज व्हाट सीपेक ए रीजन देखिए कौन जाऊँ सीपेक कौन जाऊँ पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन अच्छी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड दैट वायलेट्स द सोवरेनिटी ऑफ इंडिया से इंडिया बेल्ट एंड रूट्स पार्ट ही नहीं तेणु सियाचिन ग्लेशियर जदि आम देखा तुम देखा 2008 ट्रेकिंग होची ऑपरेशन मेघदूत कथा मु डिस्कस करुच्ची ऑपरेशन मेघदूत दैट टू बी व्हाट जो थरा आमर कौन 83 एंड 84 रही ऑपरेशन मेघदूत सो दैट जो सालतूर रेंज अच्छी से सालतूर रेंज को ऑपरेशन मेघदूत द्वारा आम कौन करते जो सालतूर रेंज को कैप्चर करके रखीचे तो मॉनेटरी कॉस्ट प्रत्येक दिन 6 कोटी टका खर्च होची सियाचिन ग्लेशियर को मैनेज करने एंड ओवरऑल आम 22,000 crores एनुअली तुम देखो इट वर्क्स आउट एनुअली 22,000 crores जदि आम कह खर्च कर सियाचिन ग्लेशियर मैनेजमेंट में चाइनीज फैक्टर जदि मुझे कहि कि चाइनीज फैक्टर देख सियाचिन ग्लेशियर जदि आम अंडर रे शुण जदि सियाचिन ग्लेशियर आम अंडर रहिले आम लद्दाख को देखिपर लद्दाख रे कौन हो तुम कह सियाचिन ग्लेशियर सिग्निफिकेंस कौन जदि आम आपको कैप्चर करके रखीचे सक्सम भैली रे कौन हो जना पड़ो चाइना साइड रे पाकिस्तान साइड रे कौन हो जना पड़ो लद्दाख साइड रे कौन हो जना पड़ो so that is why this region is important for us okay तो ये मेन इंपोर्टेंट ना इंपोर्टेंट कहीं आउ इंपोर्टेंट पॉइंट देखा कि सिग्निफिकेंस ऑफ द इंपोर्टेंस कौन फास्ट से कही जो साल्तो रीच अच्छी ताको हमें देखिपर कॉम्प्लेक्स जो गिलगिट बाल्तिस्तान को हमें चेक कर सेकेंड हूँ कौन जो आम सक्सम भैली की आम देखा लेह जो लद्दाख को जावाई तो लेह को हमें देखिपर ये कौन चलती थर्ड हूँ सक्सम भैली जोटा चाइना पाकिस्तान को बिकी देती देखिपर सो दैट हमें गोटे नजरिया सब रखिपर चाइनीज फैक्टर आम जाचे सो द चाइनीज मैंने आसीपर तेणुक ये रिजन को आमको जगिया पड़ो सीपेक बा इकोनॉमिक कॉरिडोर जोटा मुझे कहती चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एपटे जाऊँगी एंड K2 तुम जान द हाईएस्ट रेंज जोटा कि काराकोरम रेंज ईर अच्छी सक्सम भैली कथा मुझे कही हंजुआ गिलगिट रिजन अच्छी तो ये बहुत सारा रिवर्स ग्लेशियर आसूची तो ये भी आम ऑब्जेक्टिव अच्छी तेणु डिमिलिटाराइजेशन पाकिस्तान बहुत थर आमको कहलानी कि चलो तांकर फोर्स जगुची किसी एरिया रे तो से चाहूँगी कि आम खाली करदे सियाचिन ग्लेशियर को कि इंडिया सहित चुक्ति गोटे करवा खाली करदे क्या बहुत सारा इकोनॉमी लॉस होमर बट सेमती हो ना कारण पाकिस्तान उपर किसी भरोसा करहब ना सो दैट इज वाई काराकोरम गोटे कॉम्प्लेक्स रीजन एंड वी नीड टू फोकस द व्हाट इन दिस पर्टिकुलर रीजन को हमको फोकस करिया पड़िबो तो ये रहे पूरा आज डिस्कशन एंड होप टेम्परेचर बहुत चलती भुवनेश्वर एंड ओडिशा सारा ट्राई टू स्टे विद इन द डोर आउटडोर एक्टिविटीज करवा कमी दियो एटलिस्ट 11 रू 3टा जाए आउटडोर को जाओ नहीं एंड डिहाइड्रेट बॉडी को हबार बंचे रख ओके जिते पार बॉडी को हाइड्रेट कर रख वाटर इंटेक्ट नियो भोकिला रुह नहीं ओके सो विथ दिस आई वुड से थैंक यू एवरीवन